This video is for class 8, subject biology. We are continuing with chapter number 3, page 46. Energy flow in the ecosystem is unidirectional. The producers obtain their energy from the sun. Producer means the green plant. They obtain the solar energy for the process of photosynthesis and they convert it into the chemical energy. The light energy trapped by chlorophyll of the green plant is changed into chemical energy in food. This energy in turn flows to the consumer of different trophic level. As we know, the food produced by the plant is utilized by the different types of consumer, including human being. And from the each trophic level, the amount of energy decreases, as we can see through the flow chart. जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, प्रोड्यूसर से एनर्जी फ्लो हो रहा है प्राइमरी कंज्यूमर में. प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट से जो फूड मिलता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोरस एनिमल होता है, उसकी बॉडी में एनर्जी जाता है. फिर उस हर्बीवोरस को सेकेंडरी कंज्यूमर यूज करता है एज अ फूड, तो उसके बॉडी में कुछ एनर्जी जाता है. तो अल्टीमेटली द एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर एंड अल्टीमेटली टुवर्ड्स द डिकम्पोजर्स. सो दिस इज यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक तरफ से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी जा रहा है, वापस नहीं आता है. सो एनर्जी नेवर गोज बैक टू द सोर्स. वाई एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आता है. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यहाँ पर आप लोग का एक टाइप ऑफ इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि फॉरेस्ट. A forest ecosystem is a typical example of terrestrial ecosystem. It comprises both abiotic and biotic component. जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि नेचुरल थिंग्स को हम लोग अबायोटिक कंपोनेंट में बोलते हैं और लिविंग थिंग को बायोटिक कंपोनेंट में. अबायोटिक कंपोनेंट एक फॉरेस्ट में क्या क्या होता है? इट इंक्लूड द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉइल एंड एटमोस्फियर. In addition to the mineral present in the forest, there are also dead organic debris, and these other biotic factors are climate, soil, rock, sunlight, rain, and temperature. So you have to remember the name of some abiotic component in the forest ecosystem. Then it is biotic component. It includes producers like flora, that is plant, and consumers like fauna, that means animal, and decomposers. Now what are the producers? The producers are mainly trees, shrubs and herbs including grass. The trees are mostly bigger in size but fewer in number. Generally number जो है वो green plant का बहुत ज्यादा होता है, so the producers are always greater in number. Then comes the consumer, the animals that use the producer. Consume करना यानी इस्तेमाल करना. The primary consumers are the grasshopper, rabbit, mouse. The secondary consumers are primary carnivorous like lizard, snake, mole. जिस सबका अलग अलग क्वेश्चन आता है. नेम सम प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, नेम सम सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम. तो आप लोग को इस पैराग्राफ से ऑब्जेक्टिव्स के लिए पढ़ना है. द टर्शियरी कंज्यूमर्स इंक्लूड सेकेंडरी कार्निवोरस लाइक हॉक, टाइगर, लायन एक्सेट्रा. So you have to remember the name of these animals found in forest ecosystem. Now the last one is decomposer. In this ecosystem there are different types of soil, bacteria and fungi. They becomes active when dead and decaying plants and animals fall on the soil. They break down the organic matter in the bodies of plant and animal into simple nutrient and return to the soil. तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक डायग्राम भी दिया हुआ है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, कि किस तरह से ग्रीन प्लांट और हर्ब शब्स जो है वो और डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स जो है कंज्यूमर वो साथ में रहते हैं एक फॉरेस्ट में. तो डिकम्पोजर्स के बारे में क्या बता रहा है कि सॉइल और बैक्टीरिया, सॉइल के अंदर बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल को क्या करते हैं, उसके ऑर्गेनिक मैटर यानी कि उसके बॉडी पार्ट्स को तोड़ करके सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करते हैं एंड दे रिटर्न देम टू द सॉइल. तो ये सॉइल अल्टीमेटली क्या होता है, इसकी मदद से सॉइल फर्टाइल होता है डेड ऑर्गेनिज्म की वजह से, और उस फर्टाइल सॉइल से एक नया प्लांट डेवलप होता है दैट बिकम्स अ प्रोड्यूसर फॉर द इकोसिस्टम. लास्ट पैराग्राफ इज इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम. किस तरह से दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म साथ में रहता है और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है. इन एन इकोसिस्टम देयर इज इंटरेक्शन अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. Let us study about them. Number 1 is symbiosis और mutualism. ये सब के बारे में आपको एक एक एग्जाम्पल याद करना है. It is a positive interaction between two organisms who live in close contact with each other and both the partners benefit from this interaction. यानी कि दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस.
एंड बोथ द ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है लिचिन। लिचिन एक ऑर्गेनिज्म है जो अल्गी और फंगस ये दोनों के बीच में एसोसिएट करता है। द फंगस प्रोवाइड्स वाटर, मिनरल्स एंड शेल्टर टू द अल्गी, व्हाइल द अल्गी प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, सो बोथ आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। So it is an example of symbiosis. Predation. It is a direct feeding relationship between two organisms, which one animal, that is predator, kills and feeds upon the other animal. Predation में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को मार करके उसको खा लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, टाइगर feeds upon the prey like deer. This is an example of predation. Now third one is parasitism. Parasitism is a negative feeding relationship between two organisms in which one organism lives on or inside another living organisms and takes its nutrition from it. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता है और उसके बॉडी का जितना भी न्यूट्रिशन है वो खुद इस्तेमाल कर लेता है। तो ये क्या है, एक तरह का नेगेटिव फीडिंग रिलेशनशिप है। नेगेटिव फीडिंग रिलेशनशिप मतलब क्या है कि एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। द फॉर्मर ऑर्गेनिज्म इज अ पैरासाइट एंड द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट इज फीड्स इट कॉल होस्ट, यानी होस्ट के बॉडी में पैरासाइट रहता है और पैरासाइट को होस्ट से फायदा होता है। एग्जाम्पल इज लीच। इट इज अ पैरासाइट दैट फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ काउस। So this is the end of the chapter. Now we will do the exercise in class.